हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा फिजिक्स की क्लास +1 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट आप स्टार्ट किया है। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स की है। सो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। सो ब्रांच ऑफ साइंस, सो विज्ञान की वह ब्रांच जी कुदरत ते कुदरत च होने वाली घटनावां नाल संबंध रखती है। ठीक है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। सो प्रकृति कुदरत उहदे विच होने वाली ऑल the phenomena which is happening inside in nature। ठीक है, all the phenomena which are happening in nature ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी की देखो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू n इंटू यू। x इक्वल टू n इंटू यू की है, x फिजिकल क्वांटिटी है, n एक नंबर है, u का यूनिट है। ठीक है, so n is a number, u is the unit and x is a physical quantity। so ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, n 5 ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਉਹਦਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲੈਂਥ 5, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਂਥ 7 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਂਥ 7 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ठीक है, 7 किलोमीटर ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1000 गुणा हो जाएगा। सो इस तरह यूनिट छोटे ਵੱਡੇ भी होंगे है। ठीक है, सो ਆਪਾਂ नंबर ਤੇ यूनिट ਦੇ फॉर्म ਚ एक्सप्रैस करते हैं तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल ਤੇ ड्राइव यूनिट ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮਾਸ ਦਾ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ। ठीक है, जिमें किलोग्राम है kg, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, एम मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एस सेकंड। ठीक है, स्मॉल एस नाल ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, स्मॉल एस इज द यूनिट ऑफ टाइम, केल्विन k ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। सो केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेंपरेचर एटसेट्रा। ठीक है, सो ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फंडामेंटल यूनिट। फिर आप गल करेंगे ड्राइव यूनिट की। नैक्सट देखो, नैक्सट है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। की मतलब देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस के यूनिट की है मीटर, ਤੇ टाइम के यूनिट की है सेकंड। सो मीटर पर सेकंड ਦਾ यूनिट बनता है। ठीक है, सो स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। सो लेंथ ओवर टाइम, लेंथ यूनिट मीटर है। ठीक है, लेंथ ओवर टाइम मीटर पर सेकंड, ताकि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटीज। सो स्पीड इज आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ਤੇ ਉਹ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ਦਾ यूनिट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦਾ यूनिट ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, सो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को पहले एक्सप्रेस करांगे कि वो फिजिकल क्वांटिटीज ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एरिया की है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की होता है मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। ठीक है ना, सो लेंथ इंटू ब्रेथ आप करते हैं।
तो लेंथ भी मीटर है, तो इनके यूनिट की हो जाएंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह वॉल्यूम है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है, तो मीटर क्यूब में यूनिट होता है। ओके, तो ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस किया है। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। आप जो यूनिट्स की गल कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁੱਡ ਫੁਲਫਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो रिक्वायरमेंट्स की है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट की है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब उन्होंने चंगी तरह डिफाइन किया हो, वेल डिफाइंड हो, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। ठीक है, प्रॉपर साइज का हो, साइज जो है वो एक प्रॉपर हो, ये ना बहुत बड़ा साइज हो या बहुत छोटा हो जो कैरी करना औखा हो। इट शुड बी ईजीली असैसीबल। ठीक है, ईजीली असैसीबल, आसानी मिल सकता हो। इट शुड बी रीप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसिस विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, तो जिवें ਆਪਾਂ कोई यूनिट बनाया किसी कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ, तो वो यूनिट इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਉਹਦੀ ਰੈਪਲੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੱਟਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੱਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। It should not change with the time, place and physical conditions such as temperature, pressure, etc. ठीक है, so temperature, pressure, etc. इनका physical condition के नाल ये बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि टेंपरेचर बढ़े तो इसकी वैल्यू घट ना जाए, कि टेंपरेचर घटे तो इसकी वैल्यू घट ना जाए। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना जरूरी है। इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल। वाइडली एक्सेप्टेबल सारे कंट्रीज इन्होंने एक्सेप्ट कर, क्योंकि अजकल जो व्यापार जो है वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लैवल पर चलता है, इस करके ये सारी कंट्रीज जड़ियाँ ने इन्हों वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दीज आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेम वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की होंगे, देखो अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। ठीक है ना, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट का वो सेट जिहड़ा फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, वो सारा सेट फंडामेंटल ते ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स का आप इकट्ठा कर लीजिए तो उन्होंने आप कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, फंडामेंटल ते फिजिकल ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रैस करने लिए जिहड़े यूनिट्स का सैट वरत्या जाता है उन्होंने आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने जो टाइम तो वरत्या जा रहा कि है 4 तरह के सिस्टम यूनिट्स वरते जाते हैं। तो पहले CGS सिस्टम है। CGS के C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो लेंथ लिए सेंटीमीटर, ग्राम वरत्या जाता है मास मापन लिए, तो सैकेंड वरत्या जाता है टाइम को मापन लिए। ठीक है, दूसरा सिस्टम है FPS सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक्स को 10 पावर के एक्सप्रैस किया जाता है। जोड़ा FPS सिस्टम है ये मीट्रिक सिस्टम नहीं है, मतलब 10 की पावर के एक्सप्रैस नहीं किया जा सकता। इनू फुट पाउंड सेकंड ये काफ़ी पुराना टाइम तो यूज किया जा रहा जोड़ा सिस्टम है। ठीक है, सो अजकल भी जिवें केक वगैरह तुम खरीदते हो पाउंड में खरीदते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ा हले भी लकड़ वगैरह खरीदन जाते हैं तो फुट के मिलती है। ठीक है, सो इस सिस्टम फुट F स्टैंड फॉर फुट, लेंथ को मापन लिए, P पाउंड मास मापन लिए, S सैकेंड टाइम को मापन लिए। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम इनका एडवांस सिस्टम है CGS सिस्टम तो जोड़ा है वो थोड़ा एडवांस सिस्टम है। M मीटर लिए, K किलोग्राम लिए, S सैकेंड लिए वरत्या जाता है MKS सिस्टम के भी मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम जोड़ा उन्होंने आप देखा होंगे। अभी देखो फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम जोड़ा है
सो फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम के विच देखो की आ गया अपने को ऐसा ही सिस्टम कहते हैं इंटरनेट सिस्टम ऐसा ही फ्रेंच वर्ड तो स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल है, ठीक है। सिस्टम दी इंटरनेशनल है उतों ऐसा ही बनया फ्रेंच भाषा के इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स का फ्रेंच वर्जन है उन्होंने कहते सिस्टम दी इंटरनेशनल है तो SI शब्द लिया, ठीक है। सो ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर के 1960 के इंट्रोड्यूस किया गया सीगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ 2 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਥ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਮਾਸ ਲਈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ kg, ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਾਲ s, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਈ ਕੈਲਵਿਨ ਕੈਪੀਟਲ K, ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ कैंडेला CD A लाइट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, एम्पीयर ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ A ਸਿੰਬਲ ਹੈ। क्वांटिटी ऑफ मैटर की है, क्वांटिटी मैटर की है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर जी है किसी वस्तु की क्वांटिटी का रिलेटेड है। जिवें आप कहिए कि जिन्ने ग्राम किसी चीज़ के आप लेंदे आ, ठीक है, तो उहदे विच कितने नंबर ऑफ एटम्स ने उहदे नाल रिलेटेड है, ठीक है। जिवें आप सोडियम की गल करिए, सोडियम के 23 ग्राम आप ले लीए जिदा जिदा दा एटॉमिक वेट है उहदे विच 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, ये उहदे नाल रिलेटेड है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.023 into 10⁻23, तो 6.023 into 10⁻23 एटम्स जिहड़े वो 1 मोल के बराबर होंगे हैं। जिवें आपां सोडियम की गल की कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम लईए तो वो 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल के क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी होती है 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स या मोलीक्यूल्स होंदे ने। जिहड़ी चीज़ मोलीक्यूलर फॉर्म च पाई जाती है उहदे विच मोलीक्यूल्स होंदे ने, जिहड़ी एटॉमिक फॉर्म च पाई जाती है एटम्स होंदे ने। जिवें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 एटॉमिक फॉर्म च नहीं पाई जाती, ये मोलीक्यूलर फॉर्म च पाई जाती है। सो मोलीक्यूलर फॉर्म च ऑक्सीजन O2 का मतलब है कहते 32 ग्राम ऑक्सीजन लईए तो उहदे विच 1 मोल जिहड़े है मतलब 6.023 into 10⁻23 मोलीक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है मोल MOL ਇਹਦੇ यूनिट का नाम है। सप्लीमेंटरी यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेन एंगल इज मैजर्ड इन रेडियंस, ठीक है। जिथे जरूरत पेगी तुम समझाऊंगा मैं। रेडियंस ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेन एंगल मापिया जाता है, ठीक है ना। आ देखो जिवें आप एंगल लेते थीटा लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू L/R। आ एंगल रेडियंस ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। थीटा इक्वल टू L/R ये एंगल रेडियस दे विच है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस यूनिटलेस क्वांटिटी है तां करके भी सप्लीमेंटरी रखा गया। इस तरह सोलिड एंगल जिहड़ा वो भी स्टेयर रेडियन च मापिया जाता है, ये जिथे यूज होएगा उस पर दस्सिया जाएगा, ओके। हाँ देखो स्टूडेंट्स दे नाल दा न्यूमेरिकल आपां करन लगे हां जिहदे च एंगल रेडियन आंदा है, ठीक है। सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर which subtends an angle of π/6 at the center। सो एक सर्कल है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो ये एक आर्क है जिहड़ी π/6 एंगल सबटेंड करती है। आ लेंथ ऑफ द आर्क आप पता करती है, ठीक है। सो π/6 एंगल सबटेंड करती भी है। सो जो भी आप थीटा की गल करते हैं, सो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है। सो इतने रेडियस की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ द आर्क आप पता करनी है, रेडियस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिता है, ठीक है। तो थीटा अपने को है π/6, ठीक है। सो जो इस फॉर्म च थीटा ये रेडियस दे विच है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला ये एंगल रेडियन में होएगा उदों ही एप्लीकेबल है, ठीक है। सो इन्हों आप डिग्रीज में नहीं लिखना, ठीक है। डिग्रीज में π/6 जो वो 30 डिग्री बनता है, पर आप डिग्रीज में नहीं लिखना, आप इस तरह ही रखना है। सो 30 सेंटीमीटर आ गया। सो आप करेंगे थीटा के साथ π/6 लिख देना, तो लेंथ ऑफ द आर्क जी है ये पता करनी है, तो रेडियस अपने को आ गया 30। सो L की वैल्यू कितनी आ गई π/6 मल्टीप्लाई बाय
30 आ कट के 5 आ जाएगा। एल इज इक्वल पाई की वैल्यू आप 3.142 लिख दिए इंटू 5, ठीक है। सो 5 2 10, इतने 20 21 आ गया, इतने 7 आ गया, इतने 15 आ गया, ठीक है। सो इन्ने सेंटीमीटर च है तो सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सो लेंथ जी है आ गई लेंथ इक्वल टू 15.71 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरह ये न्यूमेरिकल दे नाल दे कर लेने आप। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्क्राइब अ मेथड टू मेजर द साइज ऑफ अ प्लैनेट फार अवे फ्रॉम अर्थ। धरती है इतने देखो आप डायग्राम बनाई है, अर्थ है, अर्थ तो काफ़ी दूरी ते कोई प्लैनेट है, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਮਾਪਿਆ, ਡਾਇਆਮੀਟ੍ਰਿਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਬੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਏ ਤੇ ਬੀ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ एट द सरफेस ऑफ अर्थ वो की बन गया ACB, वो अल्फा बन गया, फिर कहते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। दैट अल्फा इज इक्वल टू ACB, ए की बराबर हो जाएगा एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। हम सारी गल समझ लो, ਆਪਾਂ डिस्क्राइब करना मैथड टू मेजर द साइज ऑफ प्लैनेट फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। सो इथों अपना आंसर शुरू हो जाएगा, लेट डी बी द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, आ कैपिटल डी स्मॉल डी आप ले लिया, कैपिटल डी दूरी ले ली, ठीक है। लेट डी बी द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, जेड़ा कि अर्थ तो एट ए डिस्टेंस डी है प्लैनेट, ठीक है। So 2 points A and B diametrically opposite of the planet are seen from a point C on the earth, ठीक है। आ दो पॉइंट्स A ते B जिहड़े कि C तो देखे जा रहे हैं, ठीक है। सो ACB एंगल आप अल्फा ले लिया, और एक अल्फा आ गया तो आप भी कहा देखो हुण क्योंकि प्लैनेट जिहड़ा अर्थ तो काफ़ी दूर है तो आ समझ लो रेडियस है, इस सर्कल का जिहड़ा आर्क बनाती भी है। तो आर्क ते डायमीटर जिहड़े है ये आपस कोई ज़्यादा फर्क नहीं होएगा इन्हां दे साइज़ च, क्योंकि प्लैनेट बहुत दूर होंदे हैं, ठीक है, 4-5 करोड़ किलोमीटर की दूरी दे होंदे हैं, ठीक है। सो तां करके आ दूरी जिहड़ी है तो आ दूरी तकरीबन बराबर नज़र आएगी अर्थ तो, ठीक है। सो आपां थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस वाला फार्मूला लगावांगे। सो आपां जदों की कहांगे थीटा की हो गया अल्फा इज इक्वल टू AB ओवर डी हो गया, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू AB की वैल्यू की अपने को स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, तो स्मॉल डी की वैल्यू की आ गई फिर अल्फा इंटू डी, ठीक है। सो अल्फा की है एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, तो डी की है डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। सो लीनियर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट अल्फा ते इंटू डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इनके बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लैक्शन मैथड टू मेजर द डिस्टेंसेस। तो आप रिफ्लैक्शन मैथड देखना है, उहदे लिए आप पहले देखेंगे इको की होती है, ठीक है। इको की है जो तुसी ताड़ी मारते जे किसी हिल या किसी खुली जगह पर, तो थोड़ी देर बाद तुसी साउंड नूं अपनी वापस सुनते हो। उसका कारण की होता है कि हिल या कोई वड्डी दीवार है या दूर दीवार है, उतों टकरा के आवाज़ जी है थोड़ी देर बाद आपां नूं वापस सुनती है। सो इस फिनोमिना नूं टकरा के साउंड का किसी हार्ड सरफेस तो वापस अपने तक आना कुछ समय बाद, दैट इज कॉल्ड इको, ठीक है। ECHO इको नूं कहा जाता है, ठीक है। सो इस मैथड नूं यूज़ किया जाता है कुछ डिस्टेंस मापन दे विच। सो जिवें एक मैटर शीट है, ठीक है ना, मैटल है उसकी शीट है, जिवें समझ लो कि एक बरीक आप शीट ले ली, तो उहदे विच की है
ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਲੌਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਲੌਕ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਟੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ determine the thickness of a metal sheet. Consider the metal sheet of thickness D thickness the metal sheet consider कर ली। Let a signal is sent through the sheet from one end, एक end तो signal भेजा गया। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ incident ray, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਈ incident ray ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ reflected signal। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ reflected ray। So the signal is reflected by the boundary of the sheet and received back by the other end after time t। ठीक है ना, तो टी समय बाद दूजे एंड ने रिफ्लैक्ट वापस जो रिसीव कर लिया हमने रिफ्लैक्ट होने तो बाद। ठीक है, वी जी है वी द स्पीड ऑफ द सिग्नल, तो आप की कहांगे देखो आ डी दूरी जी है ये जान ते आन च 2 बारी कवर की गई। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना हो गया 2d। सो डिस्टेंस इक्वल टू कितना वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। ठीक है, सो स्पीड की देखो तय की दूरी बटा समा। ठीक है, सो स्पीड की तय की दूरी बटा समा, और समा अपना टी लगा, स्पीड वी नाल जा रहा है। सो इत्थे जिहड़ी डी दूरी किंदे बराबर हो जाएगी v इंटू टी बाय 2। ठीक है, सो वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइड बाय 2, ये डिस्टेंस की फार्मूला अपने को आ जाएगा जो मैटल शीट की थिकनेस। ठीक है, सो एवं थिकनेस आप माप लवांगे। ओके, हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रडार। ठीक है ना, RADAR। तो इनकी फुल फॉर्म की है, R है तो रेडियो, D तो डिटेक्शन, A तो एंड, R तो रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का मतलब की है देखो कि ये अपने जिहड़ा एयरफोर्स या अपनी मिलिटरी ये अपनी सेनावां यूज करदियां ने। ठीक है, सो उत्थे की है एक रिसीविंग स्टेशन, एक ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्टेशन बनया हुंदा है जिहदे तो रेडियो सिग्नल भेजा जाता है। कोई एयरोप्लेन अपनी जिहड़ी टैरेटरी च एंटर करता है, अपने जिहड़ा स्पेस दे विच एंटर करता है, तो उन्होंने डिटेक्ट करने लई सिग्नल भेजा जाता है। सिग्नल टकरा के वापस आता है, तो इत्थे स्क्रीन ते उनकी दूरी ते उनके बारे जानकारी आ जाती है कि इन्नी दूरी ते एरोप्लेन उड़ता पे। ठीक है, सो उन्होंने फिर वार्निंग दी जाती या किसी हालात च उन्होंने मारिया भी जाता है। ठीक है, सो रडार ये काम करता है उन्होंने चैक करने का। सो सिग्नल एक रेडियो भेजा जाता है जो टकरा के उनते वापस आता है, ट्रांसमिटर एंटीना सिग्नल भेजता है तो रिसीवर उन्होंने रिसीव करता है, तो रिसीव करके उनके बारे जानकारी देता है। ठीक है, सो ये परपज है रडार का। तो देखो की है, it is a device to detect the aeroplane in the sky and to measure its distance from the radar station। ठीक है, radar station की दूरी पता करने लिए। radar works on the principle of reflection of waves। so wave reflect होती है, ठीक है ना, wave इथों send की जाती है, इथों reflect back wave जी है वो मिलती है। so a radio signal of velocity c is transmitted from the transmitting antenna। ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रांसमिट करता है, मतलब सिग्नल को भेजता है, कहते ट्रांसमिट करना। सो दिस सिग्नल आफ्टर स्ट्राइकिंग द एरोप्लेन इज रिसीव्ड बैक बाय द रिसीवर। इतने रिसीवर तो जानकारी आ जाती है। ठीक है, सो वो मान लो टाइम टी लगता है, आफ्टर टाइम टी। ठीक है, सो लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ द डी बी द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द एंटीना। सो एंटीना तो डिस्टेंस डी है, तो आप की करेंगे हम देखो 2 बार डिस्टेंस कवर करेगा। सो 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, सो इथों डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी
c into t by 2। ਸੋ ਆਹ ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोनार। तो सोनार की है साउंड ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂजिंग। तो साउंड ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂजिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਿਗਨਲ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਡੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 20 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ, ਸੋ 2 ਵਾਰੀ ਡੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ this method also works on the principle of reflection of waves. So this method is used to measure the depth of the sea, ठीक है। A strong ultrasonic signal from the ship is sent at the bottom of the sea and received back. Let d be the depth of the sea and v be the velocity of ultrasonic signal and t be the time taken by the signal to go and reflect back. So ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 2d, v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, t ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ v into t by 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੋ।